Hello everyone, my name is Achal and I'm from India. This is our second part of family, friends, and related topics. If you are like me, who is preparing IELTS exam or learning English language all by themselves, then this video is very useful for you. So stay tuned. If you found this video helpful for you, then please press the like button. Just like the first part, we will cover how to answer short questions and then we will see different level of answers, practice them with the motions, and I will show you my band 6 to band 9 response, and then in the end of the video I'll give you homework, two phrases and two idioms which is related to our topic family, friends and relatives. So let's begin the game. This is our today's question. How do you spend time with your family? How often do you meet your family? And what kind of things do you and your family do together? On this question, let's see friend H respond. About once every 2 months, when I have a long holiday from school, at that time we do lots of things together. This is again very common and predictable response, which give us 4 to 5 band. Now we will follow this method to answer this type of questions or any type of questions in English effectively. We will paraphrase to the question, then explain why this is the case and what is the case. We have to share our experience, previous experience. If you don't have any experience on this topic, you can share your friend's experience and share your feeling, which we call in this context examples. Let's see friend C respond. I meet my family quite often. I live with my parents, so I see them every day. I love to spend time with my family by watching movies together. Sometimes we cook dinner as a team. We also play games like cards or board games. On weekends, we often go for walks in the park or visit a nearby market. I enjoy these simple activities because they help us relax and talk to each other. Let's practice friend or respond. I see my immediate family daily. We have bi weekly gatherings with grandparents and use video calls for distant relatives. Annual reunions strengthen our bonds across the wider family. We prioritize meaningful experiences like shared meals with engaging discussions or exploring local cultural events. Weekends often involve outdoor activities, balancing shared time with respective individuals' pursuits. Let's see my response. Level B1, level B2, and level C2.
Like this, you have to make your respond and just practice them by speaking again and again with emotions. Let's see. Level B1 respond. I see my close-knits every day since I live with them. Of course, except my mother. However, to stay in touch with her, I use video calls. We try to make the most of our time together. We will have dinner and just chat about our days. Along with that, we also like to respect each other's space. So it's a mix of doing things together and giving each other room. Let's see B2 level respond. My immediate family with whom I share a residence affords me daily interaction. While my mother lives in Hardwar, I maintain regular contact through video calls. We prioritize quality time, typically enjoying evening meals where we engage in casual conversation about our daily experiences. Furthermore, we strike a balance between shared activities and respecting individual autonomy, ensuring both communal communal connection and personal space. Now, level C2. Living with my immediate family means we are pretty much always around each other, except for my mom, who I catch up with regularly via video calls. We really try to make the most of our time together, usually by having dinner and just chatting about our days. It's also super important to us that we respect each other's space, so we mix it up. Some shared activities, some solo time. Like we might go for a walk and have a good natter after dinner, but then everyone does their own work in the morning or late night or late at night. This is pretty much better. As you can see, I am improving myself and you can also do this. Let's take a glance on the vocabulary which I used in my response. Close knit in हिंदी सगे संबंधी को बोल देते हैं. However, however मीनिंग निकल के आता है हालांकि. एंड along with that along with that हम तब यूज करते हैं इसके साथ साथ बोलने के लिए. लाइक इसमें मैंने पहले बोला ये लाइन स्टार्ट होती है वी विल हैव डिनर एंड जस्ट चैट अबाउट आवर डेज. इसके साथ साथ along with that we also like to respect each other's space. हम ये तो करते ही करते हैं साथ में हम ये भी करना पसंद करते हैं. तो ये साथ में के लिए यूज हो जाता है along with that. लास्ट में इसमें each other रूम है. इसका मतलब सिंपली एक दूसरे को प्राइवेसी देना है जो कि इंडियन सोसाइटी में होता नहीं है बट हम बोल सकते हैं इसमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्ड के लिए. देन इन लेवल B2 इमीडिएट फैमिली पार्ट 1 में भी यूज किया हुआ है. मतलब सगे भाई बहन सगे संबंधी मम्मी पापा भाई बहन जो सगे हैं वो इमीडिएट फैमिली में आ जाते हैं. देन अ क्वालिटी टाइम. देन आई यूज अ कनेक्टर furthermore to connect previous sentence with the upcoming sentence.
बात को अपने आगे बढ़ाने के लिए हमने ये वर्ड यूज किया है। लाइक वी प्रायोरिटाइज क्वालिटी टाइम, टिपिकली enjoying evening meals where we engage in casual conversation about our daily expenses, sorry, about our daily experiences. मतलब एक बात खत्म हो गई, दूसरी बात को शुरू करना है हमने, तो इसलिए हमने फर्दर मोर कर दिया. We strike a balance between shared activities and respecting individual autonomy. Individual autonomy is a synonym for giving each other room. मतलब स्पेस देने को ले, स्पेस देना, प्राइवेसी देना, यही इंडिविजुअल ऑटोनॉमी हो जाती है. ये सब हम वर्ड्स प्राइवेसी के लिए भी यूज कर सकते हैं. In the end of the sentence, I use both and conjunction जब भी हम दो चीज़ों को एक साथ लाना चाहते हैं, एक साथ उनको बोलना चाहते हैं, उनके बीच में कनेक्शन दिखाना चाहते हैं, तो हम both और and को यूज कर सकते हैं. Like this, like in this context, ensuring both communal connection and personal space. Now next, immediate family again, सगे संबंधी एंड प्रीटी मच ये हम क्वांटिटी बता रहे हैं टाइम की, कि थोड़ा बहुत ऐसे काफी हद तक हम साथ में रहते हैं इस तरीके से. देन हु आई कैच अप मतलब मिलना. आई एम गोइंग टू कैच अप विद माई फ्रेंड टुडे. इट इज अ कैजुअल sorry, it is a casual way to speaking. Pretty much is also a casual way. Then through video call, किस माध्यम से हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे माध्यम हो जाता है via या थ्रू. ठीक है. via हम via बस हम ट्रैवल कर रहे हैं, via ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं, थ्रू बस ट्रैवल कर रहे हैं, via ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं. इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, और भी तरीके, और भी अलग फील्ड में. नेक्स्ट है चैटिंग. चैटिंग मतलब बातें. ये बहुत कॉमन वर्ड है, सभी को पता होगा. देन मिक्स इट अप मतलब किसी चीज का एक बैलेंस मिक्स अप कर देना, और उसको मतलब एक अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में उसको मिक्स करना किसी भी चीज को. यहाँ पे हमने टाइम को और एक्टिविटीज को मिक्सअप करा है. फॉर इंस्टेंस एक एडवांस वे है फॉर एग्जाम्पल बोलने का. देन वी माइट गो. माइट एक तरह से संभावना के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए यूज होता है. वी माइट गो फॉर अ वॉक, कि हम या तो वॉक के लिए चले जाते हैं, संभावना है वॉक के लिए भी जा सकते हैं, या फिर डिनर करते हुए ऐसे बातें बातें कर लेते हैं. गुड नैटर. नैटर जैसे हम हिंदी में बोलते हैं गपशप करना, बातें ही होती है, बट हम बातों के लिए वर्ड यूज कर लेते हैं गपशप. इसके लिए हो जाता है नैटर वर्ड यूज इन इंग्लिश. ये वोकेबलरी आप अपने बनाए रिस्पॉन्ड में यूज कर सकते हैं. करोगे तो ये एडवांस ही होगी, लेकिन तरीका एकदम सही होना चाहिए, वो ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, गलत नहीं. इन द एंड ऑफ द वीडियो होमवर्क फ्रेजेस हम पहले देख लेते हैं जो रिलेट करेंगे हमारे टॉपिक से, फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. फर्स्ट है हमारा इमोशनल सिक्योरिटी. जब कोई बच्चा मतलब आसपास उसका माहौल अच्छा है और उसको इमोशनल सपोर्ट हम देते हैं, तो वो इमोशनली सिक्योर फील करता है. वहीं अगर लड़ाई झगड़े होते हैं घर में और बच्चे पे कोई ध्यान नहीं देता है कि उस पे क्या बीत रही है क्या नहीं, हो सकता है वो दुखी है लेकिन किसी को पड़ी नहीं होती है, तो ऐसे में, ऐसी परवरिश में बच्चे बड़े होते होते फिर वो इमोशनली इनसिक्योर हो जाता है, लोगों से दूर रहने लगता है, या फिर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी उसके अंदर आ जाती है. तो ये होती है इमोशनल सिक्योरिटी. एग्जांपल्स देख लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर लीडिंग टू अ फुलफिल एंड हैप्पी लाइफ फॉर अ चाइल्ड इज इमोशनल सिक्योरिटी. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है एक बच्चे की लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वो होती है इमोशनल सिक्योरिटी. कि उसके आसपास उसे सिक्योर फील हो, कि अगर वो रोता है तो उसको चुप कराने के लिए कोई है. स्ट्रेस है किसी तरीके का, तो वो अपने आसपास ऐसे फील करे कि स्ट्रेस रिलीज हो जाए आसपास के लोगों की वजह से. देन सेकंड है आफ्टर इयर्स ऑफ थेरेपी शी फाइनली फाउंड द इमोशनल सिक्योरिटी शी हैड बीन सर्चिंग फॉर. बहुत ज़्यादा ऐसे थेरेपीज के बाद, बहुत सालों की थेरेपीज के बाद आखिरकार एंड में उसको इमोशनल सिक्योरिटी मिल गई, जिसको वो तब से ढूंढ रही थी, काफी टाइम से ढूंढ रही थी.
देन सेकंड, पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर हमारे आसपास रहने वाले लोग, या हम अगर क्लास में स्टूडेंट है कोई, तो उसके आसपास उसके जो क्लासमेट्स जो उसको प्रेशर डालते हैं, किसी चीज को काम को करने का और ना करने का जो प्रेशर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैनी चिल्ड्रन स्टार्ट स्मोकिंग ड्यू टू peer प्रेशर और बैड रोल मॉडल्स। जो गुड चाइल्ड है, बैड हैबिट्स जिसके अंदर नहीं है, उसको बोरिंग बोरिंग ऐसे करके चिढ़ाते हैं, तो ये एक तरह का प्रेशर बन जाता है, तो वो भी करने लग जाते हैं। देन सेकंड, शी resisted the peer pressure to skip class and went to her lecture instead। उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था, peer प्रेशर पड़ रहा था कि वो किस चीज का, कि वो अपनी क्लास को स्किप करके बंक करते, लेकिन उसने उसको रेसिस्ट करा और वो सीधा लेक्चर में चली गई। थर्ड इज ब्रेड विनर। ब्रेड विनर घर के मुखिया ब्रेड विनर घर के मुखिया को बोल देते हैं, जो घर में कमा के ला रहा है उसको ब्रेड विनर बोलते हैं। लेट्स सी एग्जांपल, इन सम फैमिलीज द फादर इज स्टिल द ओनली ब्रेड विनर। कुछ परिवारों में आज भी जो फादर है वो ही करता धरता है, वही मुखिया है घर के। नेक्स्ट एग्जांपल इज, आफ्टर her husband lost his job, he became the sole breadwinner in their family। हस्बैंड की जॉब चली जाने पर जो उसकी वाइफ है वही अकेली ब्रेड मतलब अकेली मुखिया बनती है घर की। लेट्स कम टू द idioms। फर्स्ट वन इज, ब्लड इज थिकर देन वाटर। ये इडियम आपने बहुत सारी मूवीज में भी सुना होगा। मेनली खून के रिश्तों के लिए यूज किया जाता है कि वो ज्यादा कारगर और असरदार होते हैं। जैसे सगी संबंधी माँ बाप बोलते ही हैं कि हम ही काम आते हैं, और हमने खुद भी देखा है कि ऐसा ही होता है। जो हमारे सगे संबंधी होते हैं वो काम आते हैं ज्यादा, और जो रिलेटिव्स होते हैं वो बातें बनाते हैं। तो ये ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट में यूज होने के लिए बना है। When anyone in our family has got problem, we all help out। Nothing's too much trouble because after blood is thicker than water। मीन, जब भी हमारी फैमिली में कोई किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम सब मदद के लिए आगे आते हैं। आखिरकार आखिरकार ब्लड इज थिकर देन वाटर। सेकंड इज स्पीटिंग इमेज। स्पीटिंग इमेज मीन हो गया, जैसे हम बोल देते हैं कि ये तो बिल्कुल अपने पापा पे गया है, बिल्कुल अपनी मम्मी पे गई है। तो इसके लिए सेम टू सेम ऐसे दिखाने के लिए स्प्लिटिंग इमेज यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल्स, व्हेन आई सॉ द ओल्ड फोटोज आई रियलाइज्ड माय कजन वाज द स्प्लिटिंग इमेज ऑफ आवर ग्रेट ग्रेट अंकल। जब मैंने पुरानी फोटोज को देखा तो पता चला कि जो मेरा कजन है वो बिल्कुल स्प्लिटिंग इमेज है, बिल्कुल मेरे ग्रेट अंकल की तरह ही दिखता है। देन नेक्स्ट इज, दैट पेंटिंग इज द स्प्लिटिंग इमेज ऑफ द व्यू फ्रॉम माय विंडो। की जो पेंटिंग है वो बिल्कुल हूबहू मेरी विंडो पे जो पेंटिंग लग विंडो से जो व्यू आता है उसकी तरह है। यहाँ पे हमारी आज की प्रैक्टिस खत्म होती है। अगर आप ऐसे ही मेरे साथ प्रैक्टिस कंटिन्यू करना चाहते हो और अपनी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल को मेरे साथ इन्हांस करना चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।